So welcome to Conversations. Welcome to Talk 100.3. सर पहले तो हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बर्थडे भी है और आज आपकी बुक भी लॉन्च हो रही है. जी. और सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द रोशंस. And थैंक यू. wish you all a very happy birthday. I'm so happy that my friends of nearly 40 years, 45 years, we finally get together and they come to launch my book and felicitate me for my book, and I'm felicitating them for the success of the Roshan. Thank you so much. And I'm so proud of Gudu, you and Shashi for whatever they've done. It has created absolutely, at least in Dubai, a big hangama. And everybody is phoning me up. मैंने कहा भैया, कहते हैं आपके दोस्त से आपने बनाई है. मैंने कहा भैया मेरा दोस्त है तो मैं खुश होता हूँ. And I've been propagating this, and I'm so proud, Gudu, of what you both have done. And Shashi, you have done a job which is by far so good in the direction, and I think editing, both of you are involved, whatever. But a fantastic job. I mean, it's emotional, tearful, and a great job. It's hard to get so many people, on the same platform. But since आपकी बुक जो है वो भी बॉलीवुड की जर्नी और स्टोरीज के बारे में, तो ऐसा क्या है आपकी बुक में जो रोशंस में हमने नहीं देखा? मेरी बुक में तो भैया, मेरी बुक इज नॉट अबाउट मी माई सेल्फ. दिस इज अबाउट द मिस्टेक्स विच अ मैन मेक्स इन हिज लाइफ एंड द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन माई लाइफ एंड what are the repercussions and who all have been affected by it. And it is basically an admission of my mistakes as a man for my next generation to come so that they don't make the same mistakes. So this is more about that. Bollywood is part of my journey, because I think Bollywood has been part of my DNA from childhood, because of my mama, Mr. J.C. Jain, who was General Manager Times of India. He started the Filmfare magazine, the Filmfare Award. तो मैं बचपन से फर्स्ट Filmfare Award पे भी गया हूँ शनमुखानंद में. तो मेरे बचपन से वो था एसोसिएशन पूरा. एंड देन इट बिकेम 1990 में मौका मिला टू डू फिल्म्स, टू डू डबिंग ऑफ फिल्म. सो आई गॉट इनटू इट, डिड दैट, and then I've been associated with Shashi for last 25-30 years. When he started the IT Awards. We did that. Then he did the Beti Foundation, and then the Great Women Achievers Awards and the Great Magazine, and then make 3 films, and then now finally the Roshans. I think now he has reached his niche and found his niche, and I'm so proud of you, Shashi. Thank you. I'm so proud of you. Sir, kind of you. आप लोगों ने द रोशंस बनाई, तो हमने चारों एपिसोड्स देखे. नाउ ऑफ कोर्स इतनी सारी स्टोरीज हमको नहीं पता थी, बट टुडे आई आल्सो वांट टू डेल्व इनटू द स्टोरीज दैट यू हैवंट बीन एबल टू टेल बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीजंस. तो आपकी जितनी भी मूवीज हैं, वी ग्रोन अप वाचिंग देम, एंड उस ज़माने में ऐसा था कि जितने भी प्रोड्यूसर्स थे तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नहीं थे. यू हैव टू पुट इन योर ओन मनी, एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ खून भरी मांग और अ कामचोर और अ खेल, ऑल दीज मूवीज आर, एंड सो मेनी पीपल वर सेइंग दैट नहीं, ये नहीं चलेगी. और जब वो नहीं चलती थी तो एज अ फैमिली आप पे क्या गुजरती थी जब ऑब्स्टेकल्स आते थे, चैलेंजेस और फेलियर्स आते थे? See, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही. So we should treat the ups also the same level and downs also in the same level. So we should learn from your failure, and you should learn from your success also. But as a family, did your family not tell you to like now maybe you should stop, maybe you should like No, they always encouraged me. They said, no, whatever you think you make, you should do, and that's the way you should move ahead. और जब हम इन फिल्मों की बात करते हैं तो जैसे खून भरी मांग एक इतनी बड़ी हिट बन गई 89 में आई थी शायद, अ वुमन सेंट्रिक फिल्म इन अ टाइम व्हेन नोबडी थॉट अबाउट इट. तो उस फिल्म का कोई किस्सा अगर आप बताना चाहो हमें कि जो हमें शायद नहीं पता हो, एक ऐसी याद जो जुड़ी आपके साथ. ऐसे कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जो डॉक्यूमेंट्री में भी नहीं है. 10 दिन बाद मेरी आउटडोर शूटिंग थी. तो मैं पिक्चर बहुत जल्दबाजी में बनी. एकदम से स्क्रिप्ट रेडी हो गई, रेखा भी फ्री थी तो मैंने एकदम शुरू कर दी. तो आउटडोर शूटिंग कहाँ कर रहे हैं वो पता नहीं था. तो 10 दिन के बीच में गैप था, 10 या 12 दिन का. तो मैं ऊटी में काफ़ी शूटिंग कर चुका हूँ एज एन एक्टर. तो मैं समझा कि चलो ऊटी चला जाता हूँ.
वहाँ कोई ना कोई लोकेशन मिल जाएगी। जी जो लोकेशन चाहिए था क्रोकोडाइल का और घर का। तो जब मैं मैसूर से निकला तो हम दो रास्ते थे। एक जगह था कुर्ग करके एक हाँ। हिल स्टेशन है, एक जगह था ऊटी। तो मैंने किसी को पूछा ये कुर्ग क्या है? बोले एक हिल स्टेशन है बहुत खूबसूरत। तो मैं बोला ऊटी तो मैंने देखा है, मैं कुर्ग चलता हूँ। तो मैं कुर्ग चला गया और वहाँ मुझे एक दिन में सारे लोकेशन मिल गए थे, लेकिन वहाँ रहने की होटल नहीं। ओके उसमें होटल एट दैट टाइम। तो एक स्कूल था पुराना, जिसमें कोई 100 कमरे थे, वो खाली पड़ा हुआ था। मैंने 10 दिन बाकी है, क्या करें? तो मैंने वहाँ के वेंडर्स को बुलाया कि भाई आप इसको फर्निश कर सकते हैं, मुझे होटल बनाना है इसको। जी एक रूम हो, बिस्तर हो और वॉशरूम अच्छा और पर्दे वर्दे लगा दो, थोड़ा चूना पेंट कर दो बाहर से भी अंदर से भी। ओके और फिर मैंने वहाँ से रेखा को फ़ोन किया। हाँ मैंने देखा जो मुझे लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई है, रहने की जगह नहीं है, देयर इज नो एसी इन द रूम, पंखा है और ऐसे ऐसे कमरे की हालत है। ही सेड आई एग्री टू वॉट एवर यू से, ही हैव फाउंड द लोकेशन, देयर इज नथिंग लाइक इट। तो हम लोग फिर वहाँ पे 60 डेज हम लोग रहे, अबाउट 180 पीपल इन इट। कबीर बेदी, सोनू वालिया, रेखा, सो वी ऑल स्टेड देयर। बट यू नो उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि आज अगर ऐसी बात हो तो आज के एक्टर्स बन जाएंगे, यू विल बी एबल टू डू द सेम थिंग टुडे? Yes, why not? Because you know what happens is when you make a film, everybody works for the film. So to find a good location is the most important aspect for the film. और जब आप कहो ना प्यारे बना रहे थे तब भी बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत सारी कहानियां हैं उसकी भी, तो वहाँ से अगर कोई आप बताना चाहो, शायद आपने शो में बता भी दी हो तो भी चलेगा, बट समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग विच स्टेड विथ यू। नहीं क्या, जब मैं पिक्चर बना रहा था कहो ना प्यारे, तो मुझे वो सपने आते थे कि ऐसा लोकेशन होना चाहिए, ऐसा शिप होना चाहिए। तो मैं वो शिप ढूंढने निकला। पहले मैं गया ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ बहुत से क्रूजेज होते हैं। हाँ तो मैंने सारे शिप देखे, मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो एक वहाँ एक पोस्ट कार्ड लगा हुआ था, जो शिप मैंने कहोना प्यारे में यूज़ किया है। तो ये मैंने पूछा कि ये शिप कहाँ है, ये कहाँ है आपकी ये शिप? तो बताया गया कि वो एथेंस में है। तो देन आई फ्लू फ्रॉम देयर टू एथेंस ओके एंड आई मेट द ओनर ऑफ द शिप एंड ही सेड द सेल शिप, वी डू गो टू बैंकॉक समटाइम, वी हैव नेवर बीन टू इंडिया। ओके मैंने कैन यू कम टू इंडिया and take us on board, we'll go to Bangkok from there. It's a 9 day, 10 days journey from here, and I'll shoot in the ship and I'll book the whole ship. बहुत मुश्किल से वो माने और फिर वो आए बॉम्बे में और हम लोगों ने अपना सब जनरेटर लोड किया कि वो देवर वर्किंग ऑन डीसी, हमारे लाइट्स वर्क करते हैं एसी में। तो आई हैव टू मेक अ स्पेशल जनरेटर, साउंड प्रूफ जनरेटर। सो वी लोडेड दैट एंड देन वी शॉट ऑन द वे। फिर हमने कुछ गाने रिकॉर्ड हो गए। तो लोकेशन चाहिए थे हमें, जहाँ सी हो, आइलैंड हो एक, वो कहाँ थे। तो मैंने कहीं और भी फोटोज़ देखे कि ये रॉक्स निकले हुए हैं सी में, ये जगह कहाँ है? तो बोले फुकेत में है, हाँ कराबी आइलैंड्स करके हैं। जी वो फुकेत से कुछ 4 घंटे की ड्राइव है, 300 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गए तो लोकेशन तो मिल गए, वहाँ भी होटल नहीं। एक होटल था जिसमें 8 कमरे थे। मैंने कैसे रहेंगे? तो फिर वहाँ का जो मेन मार्केट है, मैं उनके लेन के पीछे सबके घर होते थे दुकान के पीछे। तो मैंने पूरी यूनिट को 2-2 करके, एक करके सबके घर में ठहरवाया। एंड दैट ऑल्सो नॉट फॉर 5-10 डेज, फॉर 50 डेज। तो ऐसे करके लोकेशन मिलती है। आप बहुत मेहनत करते थे फिल्म बनाने में, लाइक कुछ मेहनत करते नहीं थे, मेहनत करते हैं उस बगैर मेहनत के कुछ आपको नहीं लगता होता। है कि आप फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ एआई एंड इतना वीएफएक्स और सब? जी हाँ, इजी तो हो गया है, और जितना इजी हो गया उतना मुश्किल भी है, VFX is one of the most difficult things. डिफिकल्ट थिंग। ये आपको पर्दे पे बहुत लगता है कि ऐसे उड़ के यहाँ से हो गया, उसको बनाने के अंदर जितना टाइम और जितनी एनर्जी जाती है
each frame has to be first made by hand, and then the sequence becomes. So it takes hundreds of hours to make a small sequence of a minute or so. So VFX is not easy. It's Looks not very easy. easy on the screen, but क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है जो बातें हमारे दिमाग में वो आप कर रहे हैं VFX, या तो आपके दिमाग में वही सपने डालना है जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो बहुत डिफिकल्ट है। पर आप जब द रोशंस बना रहे थे तब है कि कोई ऐसी एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहो हमारे साथ कि बिकॉज आई थिंक ये 4 एपिसोड बनाने में भी आपको काफ़ी वक्त भी लगा होगा बिकॉज टू गेट सो मेनी पीपल टू टॉक अबाउट सो मेनी स्टोरीज। जी इसको बनाने में दो साल के करीब लगा, क्योंकि इसमें पहले रिसर्च थी, क्योंकि रोशन साहब के ज़माने का जो म्यूज़िक था, उनके ज़माने में कौन कौन लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे इस डॉक्यूमेंट्री को, किस तरह से कर सकते हैं, वो सब। फिर इनकी भी ज़िंदगियाँ जो हैं वो जो आप गूगल में देखते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कौन लोग हैं, क्या इनकी दुश्वारियाँ रही, क्या इनके हैप्पीनेस रही, उसको भी जानने के लिए वक्त लगा। और फिर उसके बाद शूटिंग, एंड ऑफ कोर्स as you've seen we have more than 45 stars in it, so it's not as easy job to do, and they're all top people from their respective fields. लेकिन ऑफ कोर्स आपकी मेहनत रंग लाई है और यू नो आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम, आई नो बाकी भी लोग रुके हैं आपके लिए, पर थोड़ा सा अगर आप हमें आज की अपनी जो लेटेस्ट फिल्में हैं राकेश जी जो आपने बनाई है, आफ्टर का होना प्यार है और जो 2010 के बाद आपने जो बनाई है फिल्में, वहाँ से अगर कोई आप हमें कोई मैंने 2010 के बाद मैंने बनाई काबिल बनाई 2018 में 17 में, और 2013 में क्रिश बनाई थी। क्रिश बनाई थी आपने। अभी हम क्रिश पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द शुरू कर देंगे। पर आप इतना स्लो क्यों कर दिया आपने? हम तो ज़्यादा देखना चाहते हैं आपकी फिल्में। मैं बहुत सोच समझ के मैं पिछले शौक के लिए बनाता हूँ, पैसों के लिए नहीं। मतलब पैसे मतलब ये नहीं कि मैं इसमें 10 पिक्चर लॉन्च करूँ, भी कर सकता हूँ, पर मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं 10 पिक्चर लॉन्च करूँ। मुझे एक पिक्चर बनाता हूँ तो मुझे रातों में नींद नहीं आती, वो सपने में वो पिक्चर घूमती रहती है। तो लगन है एक, तो लगन से काम करो तो 2 साल निकल जाते हैं, कभी 5 साल निकल जाते हैं, कभी 6 साल निकल जाते हैं। जब आप अपने प्राइम में थे, लाइक व्हेन यू आर मेकिंग ऑल दीज मूवीज, और तब तो एटलीस्ट आपकी 2-2 3-3 साल में फिल्म आ जाती थी और बहुत बड़ी हिट्स होती तब भूख बहुत लगती थी, अभी भूख नहीं लगती। तब आपको कौन लगता था कि आपका कंपटीशन, जब आप फिल्म फेयर अवार्ड्स के उस टेबल पे बैठते थे, आसपास यश चोपड़ा है, सुभाष घई है, आपको नहीं, ऑल अ गुड फिल्म मेकर्स, ये तो किस्मत की बात होती है। कोई पिक्चर चल जाती है, क्यों चलती है वो हमें पता नहीं, क्या मैजिक है। अब ये डॉक्यूमेंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर हमें इतने मैसेजेस आए हैं, इतने फ़ोन आते हैं, क्या मैजिक है, क्या है, कुछ पता नहीं हमें। हमने तो सीधे सीधे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे शशि ने हमारे साथ इंटरव्यू लिया है और कैसे जोड़ा है सबको, ये सब शशि का कमाल है। और इसमें एक मैजिक है, कोई मैजिक है जो काम करती है। पर आपको कोई रिग्रेट है अपना, आपका इतना इलस्ट्रियस करियर रहा है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि शायद ये मैंने तब कर ली होती तो आज वक्त अलग होता, या यू नो उसका कॉन्सिक्वेंस एक अलग होता? नहीं, ज़िंदगी में बस आगे कदम बढ़ते रहे, वही एक खुशी की बात है कि हर मेहनत रंग लाती रही। चलिए, क्योंकि आप तीनों फ्रेंड्स हो, तो आप जाने से पहले मैं बताना चाहेंगे कि आपका एसोसिएशन कब से आप जानते हो इनको, और आज दुबई आए हैं आपकी बुक लॉन्च करने, तो आई एम श्योर दे आर वेरी क्लोज टू यू, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको बांध के रखती है। मैं इनको जानता हूँ जब मेरे बाल थे। तब से जानता हूँ, तब से ये 30-40 साल हो गए। 40 साल हो गए, करेक्ट। आपका ही कोई किस्सा बता दो जाने से पहले, कोई ऐसा किस्सा जो रोशन जी ने ना सुना हो। भाई ये तो इनसे पूछिए, बर्थडे बॉय हैं ये बताएंगे हम। मेरे तो किस्से इतने हैं, कुछ मैं बता सकता हूँ, कुछ मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरे गुड्डू के साथ कम से कम ऐसी सेट 35-40 साल से दोस्ती है, जब इनके बाल थे। और उस वक्त he was getting into movies and struggling in that time, and I remember coming for dubbing my
songs in your recording theater, याद है जब लकी अली के गाने हमने रिकॉर्ड कर रहे थे, वो एक हमने बनाया था, 12 म्यूजिक डायरेक्टर था, तो उधर से वो दौर चला. आफ्टर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड यू सी गुड्डू एज अ पर्सन इज़ अ वेरी रिजर्व पर्सन. वो सबके साथ ज़्यादा खुलता नहीं है, घुल मिलता नहीं है, वो हमेशा रिजर्व रहता है. बट उसको मतलब क्लोज लाने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है. I'm sure Shashi knows about that. And that was exactly what happened. He's always reserved. Not because he doesn't like you or anything, but that is his nature. He always observes. As a director, he is observed. But शशि के साथ तो मेरी आई थिंक 40-45 साल की दोस्ती, और हम तो कहते हैं चड्डी बड्डीज हैं जैसे. वी डिस्कस एवरीथिंग अंडर द सन, ऑल आवर ट्रबल्स, ऑल आवर इश्यूज, ऑल आवर मैटर्स, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी गलतियों की, इनकी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा हमने. और ये जर्नी जो है हमारी जो रही है, आज इस स्टेज पे आई है कि आज ये आए हैं मेरी बुक की लॉन्च पे, और मैं इनको फेलिसिटेट कर रहा हूँ ऑन द ह्यूज सक्सेस ऑफ रोशंस पे, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग. एंड बिलीव मी, आई एम फ्रॉम इनसाइड सो हैप्पी. आई एम नॉट so concerned about my book, but I'm happy that you all are here, and I'm felicitating you because your documentary has been so successful, and it is the hard work of yours and the work of Shashi, and Shashi has put his blood and sweat into it, as you must have seen, and it is showing. And believe me Shashi, मैं दिल से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. कि आपकी बुक भी इतना ही सक्सेस Yes, yes, 100%. आपकी बुक भी हमें नेटफ्लिक्स पर एज अ वो सीरीज एक लाइन है कि दिल से जो निकलती है बात असर रखती है. तो जो भी चीज़, चाहे वो किताब हो या फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो, जो दिल से निकलती है उसका असर होता है. बिल्कुल. और शशि ने इतनी मेहनत की है और इतनी दिल दिखता है. मतलब मैं देख रहा था उस दिन रात को, मैंने 12 बजे को शुरू की, सुबह 3-4 बजे तक, और मैंने 3:30 बजे शायद तुम दोनों को मैंने मैसेज किया सुबह कि भाई, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज. इट वाज so emotionally done and so beautifully done and edited that it touched your heart somewhere, and that is what makes the success of this. That is what it is. तो आपने इनको ये नहीं बोला कि के से शुरू कर दो ये डॉक्यूमेंट्री भी? नहीं, वो क्या नाम रोशन जी है ना, तो क्वेश्चन नहीं कर सकते. क्वेश्चन नहीं कर सकते. आगे लगा कि तो किस्मत ऑफ रोशन. नहीं, वो ये तो यही रोशन. नहीं तो भाई अच्छा एक वर्ड और आ गया अभी, मैं के से लिखने की जरूरत नहीं, अभी आर से भी रख सकता हूँ. अच्छा, दिस इज आल्सो, आई एम आल्सो रॉनक, सो आई हाँ भाई ठीक. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. Thank you.